हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर। तो आज हम लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के Q2 के रिजल्ट्स का ओवरव्यू करने वाले हैं। लेकिन रिजल्ट्स का ओवरव्यू करने से पहले हम सबसे पहले वॉरेन बफेट जी का एक वीडियो देखेंगे जिसमें उन्होंने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बारे में बताया है। तो अब ये सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या होता है? तो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि वो बिजनेस जो हमें इजीली समझ पड़ता है, जिसका हमें ये आइडिया होता है कि वो बिजनेस रन कैसे होता है, उस बिजनेस में रिस्क क्या क्या होते हैं, वो बिजनेस अर्निंग कैसे कमाता है, वो बिजनेस जिसको हम प्रिडिक्ट कर सके कि फ्यूचर में ये कैसे परफॉर्मेंस करेगा। और वॉरेन बफेट जी ने भी यही बात बताई है कि हमें उन्हीं बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी हमें अंडरस्टैंडिंग हो, जो हमारे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में आते हो। तो चलिए सबसे पहले हम वॉरेन बफेट जी का वीडियो देखते हैं और उसके बाद हम Q2 की अर्निंग का ओवरव्यू करेंगे। In the past, you have said that people should operate within their circle of competence. My question is, how does one figure out what one circle of competence is? It's a good question. Some of the people in the audience are identifying with it. I can hear them. It is a question of being self-realistic, and that applies outside of business as well. I think Charlie and I have been reasonably good at identifying what I would call the perimeter of that circle of competence, but obviously we've gone out of it. I would say that in my own case, I've gone out of it more often in retail than in any other arena. I think it's easy to sort of think you understand retail and then subsequently find out you don't, as we did with the department store in Baltimore. You can say I was outside of my circle of competence when I bought Berkshire Hathaway, although I bought it really to resell as a stock originally. I probably was out of my circle of competence when I decided that I should go in and buy control of the company. That was a dumb decision. Which worked out. Being realistic in appraising your own talents and shortcomings, I think. I don't know whether that's innate, but some people seem a whole lot better at it than the others. And I certainly know of a number of CEOs that I feel have no idea of where their circle of competence begins and ends. But we've got a number of managers who I think are just terrific at it. I mean, they really know when they're playing in the game they're going to win in, and they don't go outside of that game. I can't tell you the best way to develop a great sense of that about yourself. You might get some of your friends that know you well to offer contributions. Charlie's given me a few contributions occasionally, saying, what the hell do you know about that? That's one way of putting it, of course. I don't think it's as difficult to figure out competence as it may appear to you. If you're 5'2", you don't have much of a future in the National Basketball League. And if you're 95 years of age, you probably shouldn't try and act the romantic lead part in Hollywood. And if you weigh 350 pounds, you probably shouldn't try and dance the lead part in the Bolshoi Ballet. And if you can hardly count cards at all, you probably shouldn't try and win chess tournaments playing blindfolded, and so on and so on. You're ruling out everything I want to do. But competency is a relative concept. And what a lot of us need, including the one speaking, is what I needed to get ahead was to compete against idiots. And luckily there's a large supply. ऑल राइट, तो अब जब हमने वीडियो देख लिया है तो अब हमें पहले ये समझना होगा कि इस कंपनी का बिजनेस क्या हमें समझ पड़ता है, क्या हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या। अब देखो, जो इन्वेस्टर्स इस बिजनेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं उनको तो मेरी राय यही है कि वो रिस्क ले सकते हैं और इस बिजनेस में यानी कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को इस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है या समझ नहीं पड़ता है कि कैसे बिजनेस काम करता है, तो वो लोग इंडेक्स में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं
कंपनी के नंबर्स का ओवरव्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि कंपनी 2006 में फाउंड हुई थी। 1050 लोगों से ज़्यादा की इनकी टीम है। पिछले 7 सालों में 12 गुना से ज़्यादा कंपनी ने अपने रेवेन्यू में ग्रोथ पोस्ट की है और 30 प्लस ऐसे इनके क्लाइंट्स हैं जो कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, यानी कि जो वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनियां हैं उनमें से 30 से ज़्यादा कंपनी ऐसी है जो कंपनियां इनके क्लाइंट्स हैं। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव बात है कि एक इतनी छोटी कंपनी के इतने बड़े क्लाइंट हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी ने ये भी बताया है कि हर 5 में से 4 कंपनी ऐसी है जो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के साथ काम करती है और 85% से ज़्यादा ऐसे क्लाइंट्स हैं जो रिपीट बिजनेस कंपनी को देते हैं, विच इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड थिंग। और ये कंपनी एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसको लगातार 9 बार फास्ट 50 टेक्नोलॉजी कंपनी में रिकॉग्नाइज किया गया है और 2017 में कंपनी को नंबर 1 एनालिटिक्स सॉल्यूशन कंपनी का टैग मिला। इसी के साथ साथ कंपनी ने कुछ रिवार्ड्स भी अपने शेयर किए जो आप नजर मार सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके भी पीडीएफ को गो थ्रू कर सकते हैं ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट, कंपनी ने अपने बिजनेस के बारे में बताया है कि कंपनी क्या बिजनेस करती है। तो बेसिकली कंपनी डाटा इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, विजुअलाइजेशन और एनालिटिक्स कंसल्टिंग में डील करती है। वहां पे उसने उसको फर्दर बाइफरकेट कर दिया है कि वो कस्टमर एनालिटिक्स, मार्केटिंग एनालिटिक्स, सप्लाई चेन, फाइनेंस एंड रिस्क एंड एचआर एनालिटिक्स में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कंपनी एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है जिसको हम जैसा हमें समझ में आ रहा है, और कंपनी एक सर्विस इंडस्ट्री में काम करती है। तो ये इन सबको भी आप आसानी से गो थ्रू कर सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन में कंपनी ने अपने जर्नी के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया है, तो इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। मैं ज्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लूंगा। नेक्स्ट, कंपनी ने बताया है कि किस किस सेक्टर में कंपनी का पेनिट्रेशन है और कितना कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो बेसिकली कंपनी टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल, सीपीजी एंड रिटेल एंड बीएफएसआई सेक्टर्स में काम करती है। अपने क्लाइंट्स को जो जिस सेक्टर से बिलोंग करता है उनको भी उसने मेंशन नीचे किया हुआ है, जैसे अडोबे, उबर और यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर जायंट। इसी तरह और भी सारी कंपनियां हैं जो इनके क्लाइंट्स हैं। रेवेन्यू भी इन्होंने बताया है कि इनका रेवेन्यू कैसे कैसे Q2, Q1 और फाइनेंशियल ईयर 2022 का किस किस परसेंटेज में किस किस सेक्टर से आता है, उस पे भी आप एक नजर मार सकते हैं और आप ओवरव्यू पे भी नजर मार सकते हैं कि किस सेक्टर में क्या कुछ कंपनी अपने सर्विसेज देती है। तो इस बिजनेस को बेसिकली हमें समझने की जरूरत है। अगर हमें समझ पड़ता है तो ही हमें इन्वेस्ट करके चलना है। नेक्स्ट, कंपनी ने अपना ये भी बताया कि 4 से ज्यादा कंटिनेंट्स में उन्होंने अपने सर्विसेज को प्रोवाइड किया है। तो आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे। और उन्होंने मेजरली बताया है कि यूएसए से उनका जो रेवेन्यू है वो 95% आता है, यूरोप से 2.2% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 2.8%। तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि कंपनी का जो मेजर जो बिजनेस है वो फॉरेन कंट्रीज से है। यहाँ पे कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 19 से लेके फाइनेंशियल ईयर 23 तक का अपना ऑपरेटिंग रेवेन्यूज और पैट मार्जिन्स भी मेंशन किए हैं, उन पे भी आप एक नजर मार सकते हैं। बाकी हम नंबर्स को कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो अब हम आ गए हैं फाइनेंशियल समरी पर। यहाँ पे हम कंपनी के नंबर्स का ओवरव्यू करेंगे। जो फिगर है वो रुपी इन मिलियन है। तो जब भी मैं कोई फिगर की बात करूं तो आप समझ जाने चाहिए कि मैं मिलियन रुपीज की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 20 का Q2 की बात हो रही है। यहाँ पे लास्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 23 के, और यहाँ पे जो अभी रिसेंट क्वार्टर जो गया है फाइनेंशियल ईयर 23 का Q2 की बात हो रही है। सबसे पहले हम रेवेन्यू पे नजर मार लेते हैं। तो ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हो कि रेवेन्यू में काफी अच्छा जंप है, यानी कि 39%, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 10%। उसके बाद टोटल इनकम देख लेते हैं, वो ईयर ऑन ईयर 42.9% ग्रो की है, जो कि हो गई है 1412 मिलियन रुपीज। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 8.9% का ग्रोथ है इसमें। मार्जिन पे अब हम नजर मारते हैं तो मार्जिन एबिटा में हम देख सकते हैं कि 265 मिलियन रुपीज से 373 मिलियन रुपी हो गया है ईयर ऑन ईयर, यानी कि 41% की ग्रोथ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 7.4% की। तो ईयर ऑन ईयर तो मैं कहूंगा बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं तो प्रॉफिट में भी शानदार ग्रोथ है, 71% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 18.4%। तो इन्हीं एपिटा, पीबीटी, पैट का इन्होंने परसेंटेज में भी मेंशन कर दिया है, यहाँ पे आप नजर मार सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्दर हम चलते हैं ईपीएस को, जो कि रुपीज में प्रेजेंट किया जाता है। तो ईपीएस भी ईयर ऑन ईयर 1.25 रुपीज से लेके
4.86 हो गया है, जो कि ईयर ऑन ईयर 48.8% ग्रो हुआ है। तो ओवरऑल हमें समझ में आ गया कि कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं एज ऑन डेट। कंपनी छोटी है लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और वो ग्रो भी कंपनी ग्रेजुअली कर रही है। अब देखो हमें ये समझना है कि जैसे कि इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, जब भी ये कंपनी स्टार्टिंग में लिस्ट हुई होंगी तो उस समय वो इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी कि लोग उनको दी विप्रो या दी इन्फोसिस बोल सकें। तो उसी तरह ये इस कंपनी का भी अभी ये स्टार्टिंग फेज चल रहा है। तो हमें ये समझ के चलना है कि कंपनी अभी बहुत ही छोटी है और रिस्क भी बहुत ज्यादा है इसमें। अभी नेक्स्ट कंपनी ने बताया कि कैसे कंपनी का लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट है उनके क्लाइंट के साथ। तो यूएस बेस्ड ग्लोबल सॉफ्टवेयर जायंट है, उनके साथ 12 साल से कंपनी काम कर रही है। मल्टीनेशनल ई कॉमर्स कॉर्पोरेशन है, उसके साथ 10 साल से काम कर रही है। और ग्लोबल इंटरनेट डिजिटल मार्केटिंग सर्च जायंट है, उसके साथ कंपनी 7 साल से एसोसिएटेड है। फर्दर कंपनी ने अपने रेवेन्यू को भी बाइफरकेट किया हुआ है कि लेस देन 50 मिलियन INR का जो रेवेन्यू है वो 39 क्लाइंट से आता है, 50 to 100 का 9 क्लाइंट से आता है, 100 to 500 मिलियन का 8 क्लाइंट से आता है और अबव 500 मिलियन का 2 क्लाइंट से आता है। नेक्स्ट कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बताया। यहाँ पे आप गो थ्रू कर सकते हैं कि कौन इनके चेयरपर्सन है, कौन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, और अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बताया जो आप कंपनी के प्रेजेंटेशन को गो थ्रू करके भी जान सकते हैं। तो अब हम आ गए लेटेंट व्यू के चार्ट पर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी लिस्ट हुई थी 26 नवंबर 2021 में, यानी कि जस्ट 1 साल पहले। तो तब से लेके अब तक कंपनी के शेयर जो है वो 43.95% डाउन है। कंपनी के नेचर को हम समझ लेते हैं। कंपनी की मार्केट कैप 7.8 थाउजेंड करोड़ है, यानी कि कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, जस्ट हल्का सा स्मॉल कैप लेवल से ऊपर है। तो मिड कैप कंपनी का नेचर क्या होता है? मिड कैप कंपनी का नेचर यही होता है कि जब भी मार्केट में कोई गिरावट आएगी तो कंपनी का शेयर प्राइस आप अज्यूम कर सकते हो 40 to 50% तक डाउन आ जाता है। वही इस कंपनी के साथ हुआ है। पी रेशियो 57 के आसपास है इस कंपनी का, यानी कि 57 रुपए की अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 रुपए की आपको अर्निंग होगी। तो कंपनी अभी प्रीमियम लेवल पे ट्रेड कर रही है। अभी वैल्यूएशन वाइज कंपनी महंगी है। क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? अब देखो, जिस इन्वेस्टर को इस कंपनी के बिजनेस समझ पड़ता है, जिसको बिलीव है, जो रिस्क ले सकता है, वो इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। लेकिन अभी नहीं। 2023 के फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर में हमें ये डिसीजन लेना है कि हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम तक रिसेशन भी आ चुका होगा जिसकी अभी हर जगह चर्चा हो रही है। और जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते तो उनके लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि वो इंडेक्स में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, ताकि उनको मार्केट की वोलेटिलिटी को झेलना ना पड़े। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।